محکمہ پولیس بدنامی کی حد تک ہمیشہ سے عوام کی شدید تنقید کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ خاص طور پر ایمانداری اور بہادری کے حوالے سے محکمے پر بڑی حد تک جائز شکایات اور الزامات بھی لگائے جاتے رہے، لیکن شبیر نے مبینہ بدعنوانی کے سیاہ جنگل میں ایمانداری، فرد شناسی اور عوام روشنی کے چمکتے کچھ جگنو بھی دیکھیں جن کی روشنی تاپناک بھی ہے اور حوصلہ افزا بھی۔ اور گزشتہ دنوں شبیر نے شیخ پورہ میں ایمانداری، بہادری اور فرد شناسی کے دو ایسے واقعات دیکھیں جو پولیس کا مورال بلند کرنے اور عوام اور پولیس کے درمیان بد اعتمادی کی خلش کو کم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آئیے ان دونوں واقعات کو دیکھتے ہیں۔ لاہور کے ایک بنگلے سے کار نکلی اور پھر یہ کار مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پشاور جانے والے راستے پر گامزن ہو گئی۔ ڈرائیور کے ساتھ ایک گن مین بیٹھا ہوا تھا جس کے کانوں میں ہیڈ فون تھا اور وہ کسی سے مسلسل بات کیے جا رہا تھا۔ کار کوٹ ادو مالک انٹرچینج کے قریب پہنچی تو کچھ دور جا کر اس کی رفتار حیرت ناک طور پر کم ہو گئی اور پھر اچانک یہ کار رک گئی۔ گن مین نے ڈرائیور کی طرف دیکھا اور ڈرائیور کار سے باہر اتر گیا۔ ابھی ڈرائیور کار کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اچانک 4 افراد برآمد ہو گئے۔ گن مین کو کار سے اتار کر ایک طرف کھڑا کر دیا گیا اور پھر کار کی تلاشی لی جانے لگی۔ ڈرائیور نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ بھی قریب آ گیا۔ پھر ڈرائیور سے کار کا پچھلا حصہ کھولنے کے لیے کہا گیا۔ کار کا پچھلا حصہ کھولا گیا تو اس میں چھوٹے بڑے سوٹ کیس بھرے ہوئے تھے۔ ان 4 افراد میں سے ایک نے ایک بیگ کی زپ کھولی اور پھر اسے بند کر دیا۔ پھر وہ چاروں افراد کار میں بیٹھ گئے اور ڈرائیور اور گن مین کو وہیں چھوڑ کر کار لے کر آگے بڑھ گئے۔ کار روانہ ہوئی تو ڈرائیور اور گن مین انتہائی پریشانی کے عالم میں کار کے پیچھے پیدل بھاگنے لگے، مگر کار غائب ہو چکی تھی۔ اب ڈرائیور نے وہاں سے گزرنے والی ایک موٹر سائیکل سے لفٹ لی۔ ابھی موٹر سائیکل کچھ دور ہی گئی تھی کہ ڈرائیور کو کار ایک طرف کھڑی ہوئی نظر آ گئی۔ ڈرائیور کار میں داخل ہوا تو چابی لگی ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے انتہائی خوف اور پریشانی کے عالم میں کار کا پچھلا حصہ کھول کر دیکھا تو سوٹ کیس غائب تھے۔ گن مین ہانپتا کانپتا کار تک پہنچا تو ڈرائیور نے اسے بتایا کہ انہیں لوٹا جا چکا تھا۔ کار سے سوٹ کیس لے جانے والے ڈاکو تھے جنہوں نے خود کو FIA کا اہلکار ظاہر کر کے کار پر چھاپا مارا تھا اور ان سوٹ کیسوں میں رکھی رقم لے کر فرار ہو گئے تھے۔ یہ رقم معمولی نہیں تھی، 9.5 کروڑ کے کرنسی نوٹ تھے جو لاہور کے رہائشی خرم بٹ کی ملکیت تھے۔ خرم بٹ اپنے ملازموں کے ذریعے یہ رقم پشاور بھجوا رہے تھے کہ راستے میں رقم لوٹ لی گئی۔ واقعے کی اطلاع DPO شیخ پورہ کو ملی تو انہوں نے متعلقہ تھانے کے SHO کو فوری طور پر ملزمان کو پکڑنے اور رقم برآمد کرنے کا حکم دیا۔ متعلقہ تھانے دار نے فوری طور پر لاہور کے تاجر خرم بٹ سے رابطہ کیا، ان سے ساری معلومات لی اور ڈرائیور اور گن مین خورشید کو شامل تفتیش کرنے کے لیے تھانے لے آیا۔ خورشید، ڈرو مت، بتاؤ اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سر بتا تو دیا، وہ 4 آدمی تھے اور کہہ رہے تھے ہم FIA والے ہیں اور سب کچھ لوٹ کے لے گئے۔ اچھا، ان 4 آدمیوں کو تم جانتے ہو؟ اگر جانتا تو آپ کو بتا دیتا، لیکن میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس۔ تمہارا موبائل فون کہاں ہے؟ موبائل یہ ہے، مگر کیوں سر؟ فکر مت کرو، ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ ابھی تفتیش جاری تھی کہ اچانک خورشید پولیس والوں پر برس پڑا۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، لوٹا بھی ہمیں گیا ہے اور تنگ بھی ہمیں کیا جا رہا ہے۔ تھانے دار نے مسکرا کر گن مین خورشید کی جانب دیکھا۔ اس دوران وہ اس کے فون کا ریکارڈ چیک کر چکا تھا۔ اسی دوران لٹنے والے تاجر کا فون بھی آ گیا اور وہ بھی پولیس پر برہم ہو گیا۔ ابھی تھانے دار نے فون کانوں سے لگایا ہی تھا کہ تاجر کی آواز گونجنے لگی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ آپ میرے ہی لوگوں کو پکڑ لائے ہیں؟ برائے مہربانی آپ ان کو فوراً چھوڑ دیں اور ڈاکو کو گرفتار کریں اور میری رقم واپس دلائیں، ورنہ میں… میری بات تو سنیے، ہم پہ اعتماد تو کیجئے، ہمیں تھوڑا سا کام کرنے کا موقع تو دیجئے۔ ضرور آپ اپنا کام کیجئے، لیکن برائے مہربانی میرے ملازموں کو فوراً چھوڑ دیجئے۔ ٹھیک ہے جی، میں کوشش کرتا ہوں۔ پولیس نے گن مین کے موبائل فون ڈیٹا سے کرائم سین کا پتہ لگا لیا تھا۔ گن مین اور بٹ صاحب کے ڈرائیور ملزمان سے ملے ہوئے تھے اور پھر پولیس نے قریبی خوشاب کے علاقے سے ایک ملزم کو گرفتار کر کے 1.5 کروڑ روپے برآمد کر لیے تھے۔ DPO شیخ پورہ سرفراز خان ورق نے اس واقعے کی تفصیلات
कुछ इस तरह बताई। हमने जब उसको पकड़ा तो शुरू में उसने बड़ा नॉर्मल सा बिहेव करने की कोशिश की और उसने कहा जी कि मतलब वो बिहेव इस तरह कर रहा था कि मेरे साथ मेरी पुलिस जो है वो रिवायती तरीके से हम ही पर शक कर रही है, हमारे साथ वारदात हुई है, वेपन के साथ लोग आए हैं, हमें लूट लिया गया है, हमें पहले FIA का कहा गया और बाद में हमें पैसे लेकर वो भाग गए। पुलिस का वही रवायती तरीका है कि जी आप हमारे पर शक कर रहे हैं। तो इवन जो उनके जो कंप्लेनेंट थे, जो मालिक थे मनी चेंजर वाले, वो भी कह रहे थे कि आप हमारे बंदों को ही शक कर रहे हैं। तो शुरू में एक डिफरेंट व्यू था उनका, लेकिन हमने रिमेन काम और हमने अपने फोकस रखा कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इनको अभी खाइफ नहीं करेंगे। लेकिन हमने साथ साथ अपना जो CDR और जो IT वाले क्रिमिनल जो इंटेलिजेंस ट्रैकिंग है उस पर फोकस रखा। और जब हमने उनको सामने रख दिया कि ये इन बंदों से तुम बात कर रहे थे, ये बंदे इस टाइम पर तुम्हारे साथ मौजूद थे, इनकी कॉल डेटा भी इस टाइम का है और ये कोट अब्दुल मालिक में उसी जगह पर मौजूद हैं, उसी जो आप सिग्नल्स आ रहे हैं उसी जगह पे जहां पर आप थे। तो दिस शोज कि आपका उनके साथ है। और बाद में फिर उसने माना। एक मुलजिम का पकड़ा जाना था कि बाकी के मुलजिमान फरार हो गए, मगर पुलिस ने उन्हें भी धर लिया और लूटे गए 9.5 करोड़ रुपए की रकम बरामद कर ली। 6 के 6 मुल्जिमान की गिरफ्तारी और लूटी हुई रकम बरामद करने के बाद DPO शेखोपुरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्जिमान को रकम समेत मीडिया के सामने पेश किया था और फिर बरामद होने वाली रकम ताजिर को लौटा दी गई थी। ये है वो मनाजिर। शब्बीर का कहना है कि 9.5 करोड़ रुपए की रकम कोई मामूली रकम नहीं थी। लालच अच्छों के कदम लड़खड़ा देती है, ईमान मुतजलजल हो जाता है, आंखों पर हवस की पट्टी बन जाती है, तमाम उसूल और अखलाकियात का जनाजा निकल जाता है, मालो मता दुनिया और आफियत के खौफ को चाट जाता है। मगर सलाम है ऐसे पुलिस अफसरों को जिन्होंने अवाम के दुख को अपना दुख समझा, इंसानी जिबल्लत में पाए जाने वाले लालच और बेजमीरी के नासूर का मुकाबला किया, उसे शिकस्त दी और जमीर की आवाज सुनी और हक ब हकदार रसीद पर अमल करके साबित कर दिया कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कोई पूछने वाला था, अगर बरामद की गई रकम का कुछ हिस्सा या सारी की सारी रकम पुलिस हड़प कर जाती, मगर जब मीरे कारवां की रगों में अमानतदारी, शराफत और हमदर्दी का खून दौड़ रहा हो तो कारवां में शरीक हर फर्द, हर सिपाही अपनी अपनी जगह मजबूत और आला किरदार का मालिक बन जाता है। देखिए, पुलिस सर्विस में और बाकी सर्विसेज में बहुत फर्क है। मैं सबको ये कहता हूँ कि शायद पुलिस में अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप खिदमत कर रहे हैं, दिन और रात का कोई फर्क नहीं है। बाकी सर्विस वाले सुबह आते हैं, अपना ऑफिस खोलते हैं, शाम को जब घर चले जाते हैं तो उनका ऑफिस बंद हो जाता है। पुलिस का 24 आवर सर्विस है। इसका आने की तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। जब शेखोपुरा में DPO के दफ्तर पहुंचा तो लूटी गई रकम का कुछ हिस्सा शब्बीर के सामने मुतासरा ताजिर के हवाले किया गया और ये है वो मनाजिर। शब्बीर ने जब मुतासिरा ताजिर से बात की तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बगैर किसी रिश्वत, बगैर किसी परेशानी के उसकी लूटी हुई रकम वापस कर दी गई थी। फालतू मैंने मुतलका थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। हर वक्त में रिपोर्ट दर्ज हुई, इसके लिए भी मैं पुलिस का बड़ा मशकूर हूँ। DPO साहब, फराज खान विर्क साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया और विद इन 42 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर मेरी उन्होंने रिकवरी दी। और कुछ रिकवरी मुझे पहले हो गई थी, कुछ रिकवरी मुझे आज हुई है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू पुलिस डिपार्टमेंट, फराज खान विर्क साहब का, इकबाल साहब हैं, SHO हैं, इनका उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये पुलिस की सारी एफिशिएंसी है, पुलिस की ही एफर्ट है और फिर से दोबारा से मतलब मैं इनका ये थैंकफुल। महकमा पुलिस में इस तरह की ईमानदारी और आला अखलाकी इक़दार की पासदारी की मिसालें शाज़ और नादिर ही देखने में आती हैं, और अगर कोई ऐसी मिसाल सामने भी आ जाए तो कोई यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं होता, मगर हाथ कंगन को आरसी ही क्या। DPO शेखोपुरा की सरबराही में काम करने वाली टीम ने ईमानदारी की मिसाल कायम की है, जिसका ना सराहा जाना ज्यादती होगी। पुलिस रिश्वतखोरी, नाजायज गिरफ्तारियों, बुरे रवैयों और यहाँ तक के बुज़दिली के इल्जामात भी इस पर लगाए जाते रहे।
जिनमें बड़ी हद तक सदाकत भी है। लेकिन हम आपको पुलिस की बहादुरी और फर्ज शनासी का एक और वाकया दिखा रहे हैं, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया था, जिसके बाद डीपीओ शेखपुरा ने इस ऑपरेशन की कमान संभाल ली और 2 मुंशियात फरोशों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। डीपीओ शेखपुरा ने इस वाकये की जो तफसीलात बताई थी, उनकी तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। उस दिन डीपीओ शेखपुरा हस्बे मामूल अपने दफ्तर में सरकारी काम निपटा रहे थे कि एक थानेदार कमरे में दाखिल हुआ। थानेदार ने अपने अफसर को अदब से सलूट किया। अफसर ने नजरें उठाकर अपने थानेदार को देखा तो अफसर को ऐसा लगा जैसे थानेदार कोई बहुत अहम खबर लेकर आया हो। कोई खास खबर? सर, खबर मिली है कि मुंशियात फरोश इलाके में वापस आ चुके हैं। मुंशियात फरोश? अच्छा, वो 2 भाई? यस सर। सर, इलाके में बहुत खौफ और राज फैला हुआ है और असलाह की नोक पर लोगों से भत्ता भी वसूल करते हैं। और सर, मुंशियात फरोशी का काम तो वो कर ही रहे, लोग बहुत परेशान हैं सर। तो फिर देर किस बात की है? नफरी तैयार करो, गिरफ्तार करो उन्हें। यस सर। बात सुनो सर, थोड़ा एहतियात से छापा मारना, अपनी भी जान की हिफाजत करना और आवाम की भी। मैंने सुना है बहुत खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर आप बेफिक्र हो जाइए, इंशाल्लाह आपको अच्छी इत्तला मिलेगी। वेल डन, गो अहेड। थैंक यू सर। थानेदार रवाना हो गया और उसका अफसर किसी को फोन मिलाने लगा। उधर शब्बीर ने देखा कि एक मकान का दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे ही पर एक शख्स हथियार पहलू में रखे मंशियात बेचने में मसरूफ था। लोग खामोशी से गली में दाखिल होकर मंशियात फरोशों के अड्डे तक जाते दिखाई दिए। शब्बीर ने देखा कि एक शख्स मंशियात खरीदने के बाद वहां से रवाना हुआ तो पड़ोस के दरवाजे से एक शख्स बरामद हुआ और मंशियात फरोश पर बरस पड़ा। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है? खुले आम मंशियात बेच रहे हो? अरे इस मोहल्ले का तो कुछ तो ख्याल कर लो। और चाचा अपने काम से काम रख, चल। कुछ तो खुदा का खौफ कर, इस मोहल्ले के बच्चे खराब हो रहे हैं। और चाचा तुझे कहा ना दिमाग नहीं घुमा, चल अपने काम से काम रख और बक बक बनकर चल, जाके काम कर अपना। पड़ोसी बड़बड़ाता हुआ घर के अंदर चला गया और मंशियात फरोश अपने काम में मसरूफ रहा। इसी लम्हे शब्बीर ने देखा कि मंशियात फरोशों का एक कारिंदा दौड़ता हुआ गली में दाखिल हुआ और हाँफता कांपता मंशियात फरोश के दरवाजे पर आकर रुक गया। बे क्या मौत पड़ गई, क्या हो गया? पुलिस। कारिंदा पुलिस की इत्तला देकर आगे बढ़ गया। मंशियात फरोशों ने फौरन अपना दरवाजा बंद किया। उसने अपना असलहा उठाया, छत पर चढ़ने लगा कि कमरे से उसका साथी निकल आया। क्या हो गया? ऊपर का भाग रहा? अबे पुलिस आ रही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो अपना देख। मंशियात फरोश ने छत पर पहुंचकर एहतियात से सामने से आने वाले रास्ते का जायजा लिया तो उसे पुलिस मोबाइल दिखाई दे गई। मंशियात फरोश छत पर इस तरह लेट गया कि उसे बाहर का मंजर नजर आता रहे। छत पर लेटे लेटे उसने बंदूक को फायरिंग के लिए तैयार किया और उसके साथ ही अपने साथी को भी आवाज लगा दी। वासिफ, खिड़कियां लाइटें बंद कर दे। तो पिछले दरवाजे को देख, मैं रोकता हूँ यहाँ से इनको। मंशियात फरोश का साथी पिछले दरवाजे पर घात लगाकर बैठ गया। उधर शब्बीर ने देखा कि थानेदार की सरबराही में पुलिस पार्टी ने जाए वकूफ पर पहुंचकर जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन संभालने की कोशिश की। 2 पुलिस एहलकार पोजीशन संभालते हुए अभी दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि शदीद फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगी। पुलिस एहलकार दरवाजे से हटकर एक तरफ हो गए। अब वो अपनी पोजीशन बदलते हुए जब दूसरी तरफ पहुंचे तो उनके साथी पोजीशन संभाले मंशियात फरोशों की फायरिंग का जवाब दे रहे थे। मंशियात फरोशों की जानिब से अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही थी जो पुलिस एहलकारों के आसपास गिर रही थी। इसी दौरान एक बहादुर सिपाही ने गोलियों की बौछार में मंशियात फरोशों की जानिब पेशकदमी के लिए झुककर दौड़ना शुरू कर दिया और एक दीवार की आड़ से उनकी फायरिंग का जवाब देने लगा। मंशियात फरोशों और पुलिस पार्टी के दरमियान काफी देर तक मुकाबला जारी रहा, लेकिन अचानक एक गोली पुलिस एहलकार को लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गया। शब्बीर ने देखा कि डीपीओ शेखपुरा का फोन मेज पर पड़ा था और उस पर मुसलसल बेल हो रही थी। डीपीओ अपनी मेज से कुछ फासले पर खड़े अपने अफसरों से तबादला ख्याल कर रहे थे। फोन की घंटी सुनकर वो मेज की तरफ लपके और जब उन्होंने फोन कॉल सुनी तो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गए। क्या? ओह नो। सर खैरियत है?
मुंशियात फरोशों ने हमारे एक अफसर को शहीद कर दिया है। अब शुरू कर दिया। रायगा नहीं गई। मंशियात फरोशों के जहन्नुम रसीद होने की खबर सुनकर गांव वाले घरों से बाहर निकल आए और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। शब्बीर जब पुलिस के फर्जशनास अफसर डीपीओ शेखपुरा से मिलने पहुंचा तो वो हस्बे मामूल अपने सरकारी काम काज में मसरूफ थे। शब्बीर खामोशी से फर्जशनास, ईमानदार और बहादुर अफसर की दिन भर की सरगर्मियां देखता रहा, जिसके बाद डीपीओ से शब्बीर ने पुलिस में इस्तेलाहात, आवाम और पुलिस के दरमियान पाई जाने वाली बदगुमानी और इसके असबाब के अलावा पुलिस फोर्स की बेहतरी के इक़दामात और दीगर मसाइल पर खुलकर गुफ्तगू, ये सब कुछ देखना न भूलिएगा, क्योंकि अब जो कुछ आप देखेंगे वो पुलिस के रवायती तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। शब्बीर डीपीओ शेखपुरा सरफराज खान वर्क से मुलाकात के लिए उनके दफ्तर पहुंचा तो वो दफ्तर से निकलकर पुलिस लाइन जा रहे थे, जहां डकैती का शिकार होने वाले ताजिर को 9.5 करोड़ में से बाकी बरामद होने वाली रकम वापस की जानी थी। भी देते नजर आए। उस दिन शब्बीर को लगा कि पुलिस और अवाम के दरमियान बदगुमानी की खलीज को अवाम दोस्त रवैये और फर्ज शनासी के जरिए पाटा जा सकता है। पुलिस अफसर के बेहतर और इंसान दोस्त रवैये का अक्स शब्बीर को एक ज़ईफ साइला की आंखों से छलकता नजर आया, गोया कह रही हो कि उसकी फरियाद सुनी गई। शब्बीर ने डीपीओ को देखा जो साइला को हर लिहाज से मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे। ये है वो मनाजिर। शब्बीर ने डीपीओ शेखपुरा की अवामी कचहरी में लोगों के मसाइल हल करने और अपने दफ्तर में लोगों से मुलाकात करने, उनके मसाइल सुनते देखा। साथ ही उन लोगों से भी बात की जिनके मसाइल हल हो गए थे। एक दिन हमारी दोनों गाड़ियां इधर पकड़ी गई, डाकुओं ने पकड़ ली, छीन ली। इन्होंने दिन रात मेहनत करके और डीपीओ साहब की खुसूसी हिदायत के मुताबिक इन्होंने जद्दोजहद करके हमारी गाड़ियां भी बरामद करवाई और रिकवरी भी 50% बरामद करवाई। डीपीओ साहब सरफराज खान साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी रिकवरी करवाई है और हमें थाने की हदूद में इंसाफ मिला है। शुक्र वकील है, उसने हमारी जमीन 25 साल से तकरीबन अपने कब्जे में दबाई हुई थी। तो वो अमीर आदमी था और मैं गरीब आदमी था, तो वो मेरी बात ही को नहीं सुनता था। तो इनकी मेहरबानी सरफराज साहब की, डीपीओ साहब की, इन्होंने ये मेरी बात मैं उनको बताई तो उन्होंने जमीन मुझे वापस दिलवाई। मैं उनका नहायत शुक्रगुजार हूँ। इसी दौरान मुतहर्रिक और फाल पुलिस अफसर को सरगर्मी से अपने फराइज अदा करते भी देखा गया। पुलिस के चाको चौबंद सिपाहियों ने अपने अफसर को सलामी दी तो शब्बीर को यूं लगा जैसे लायक फायक फर्ज शनास अफसर की जेरे कमान काम करने वाले ये सिपाही भी पुलिस फोर्स को अवामी खिदमत का इदारा समझते हुए अपने फराइज अंजाम दे रहे हों। ये है वो मनाजिर। उमूमन देखने में आया है कि सरकारी अफसरों और उनके मुलाजिमीन के दरमियान एक नाकाबिल तस्खीर फासला हायल हो जाता है, लेकिन शब्बीर ने देखा कि इस फासले को खत्म करने के लिए खुद डीपीओ साहब मुलाजमीन के मेस में खाना खाने चले जाते। शब्बीर का कहना है कि महकमे पुलिस में गुड गवर्नेंस की मिसालें कम ही देखने में आती हैं, लेकिन शब्बीर को खुशी है कि शेखोपुरा में पुलिस की आला क़यादत महकमे को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशा थी। शब्बीर ने यह भी देखा कि शेखोपुरा में डीपीओ ने डोमेस्टिक वायलेंस की रोकथाम और खवातीन के मसाइल हल करने के लिए खवातीन ही पर मुश्तमिल एक फोर्स बना दी थी। डीपीओ का कहना था कि खवातीन अपने मसाइल खवातीन ही को बेहतर अंदाज में बता सकती हैं। ये हैं वो मनाजिर जब डीपीओ शेखोपुरा डोमेस्टिक वायलेंस विंग का इफ्तिताह कर रहे थे। एक दिन स्टडी कर रहा था ऐसी कि हमारा जो साल में जो एप्लीकेशंस आई हैं उसमें डेली तकरीबन 10 में से अगर मेरे पास 15-20 लोग आते हैं तो उसमें 3-4 खवातीन आती थी
और वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती थी। किसी को सास ने मारा है, किसी को ससुर ने मारा है, किसी को देवर ने, जेठ ने, इवन खामन ने मारा है। इवन हमारे पास ऐसी आई बच्चियां जिनको उनके वालिदैन ने मारा। और वो बेचारी जब हम उनसे पूछते तो किस मुश्किल से वो हमारे पास पहुंचती थी कि जी हमें बहुत डर खौफ है और हमें कुछ हो ना जाए, लोग हमें डराते थे। और मेरे दफ्तर में जब आई तो इस साल में 1600 से ज़्यादा वो एप्लीकेट्स थी। तो हमने ये सोचा कि एक ऐसा सेल बनाया जाए, एक डेडिकेटेड सेल, और उसमें वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं। और उस सेल का ये कॉन्सेप्ट है कि 15 की कॉल अगर उनको कोई घरेलू तशद्दुद की मिलेगी, वो फौरी तौर पर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके घर जाएंगे। पुलिस और अवाम के दरमियान फासला खत्म करने, बदगुमानियां दूर करने और अवामी शिकायत सुनने के लिए सबसे अहम काम जो शब्बीर को नजर आया वो था फ्रंट डेस्क। कैसे काम करती है और उसके क्या असरात मुरत्तब होंगे, इसके बारे में डीपीओ ने जो मौके पर ब्रीफिंग दी वो कुछ इस तरह है। FIR दर्ज करने का ये मॉडर्न तरीका देखकर शब्बीर को इत्मीनान हुआ कि हमारी पुलिस अब रिवायती बदउनवानी की धुन में लिपटी रविश से अलग होकर कुछ नया सोच रही है। फिर शब्बीर ने वो मनाजिर भी देखे जब फर्ज शनास पुलिस एहलकारों ने सड़कों पर डकैती करने वाले मुल्जिमान को मसरूका सामान समेत डीपीओ के सामने पेश किया था। इन मुल्जिमान ने शब्बीर के सामने अपने जुर्म का इतराफ भी किया। शब्बीर को बताया गया था कि डीपीओ शेखोपुरा ने पुलिस की फलाह व बहबूद के लिए कई इक़दामात किए हैं। शहीद पुलिस एहलकारों के अहले खाना के मुफ्त इलाज मुआवजे के लिए शहर के एक अस्पताल के साथ मफाहिमत की याददाश्त का मुआहदा किया है। इस अस्पताल में शहीद के अहले खाना का मुफ्त इलाज होगा, जबकि इन सर्विस पुलिस एहलकार भी इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। पुलिस एहलकारों के बच्चों की तालीम के लिए भी शहर के अच्छे स्कूलों से मुफ्त तालीम की बात की गई है। शब्बीर ने खुद देखा कि डीपीओ जब शहर के एक बड़े अस्पताल पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। फिर मफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत की भी एक तकरीब हुई, जिसके बाद डीपीओ ने शहीद पुलिस एहलकार के यहाँ होने वाले एक नौमौलूद को मुबारकबाद भी दी। ये है वो मनाजिर। महंगा इलाज मुफ्त कराने पर शहीद पुलिस एहलकार के अहले खाना इजहार तशक्कुर करते नजर आए। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर को जिस ईमानदार फर्जशनास और बहादुर अफसर की तलाश थी वो उसे नजर आ गया था। शब्बीर को यह भी एहसास था कि हर चंद कहें कि है नहीं है वाली बात ना हो, मगर हाथ कंगन को आरसी क्या है। बज़ाहिर जो नजर आया वो हौसला अफजा था। और फिर जब डीपीओ शेखोपुरा सरफराज खान विर्क से दिन भर की मसरूफियत के बाद बैठक जमी तो शब्बीर को मजीद यकीन हो गया कि पुलिस फोर्स में अगर पढ़े लिखे और जहां दीदा अफसर शामिल होते रहे तो एक दिन अवाम आंख बंद करके पुलिस पर एतमाद करने लगेगी और फिर अवाम के ताउन से जराइम पेशा नासिर का भी मुकम्मल खात्मा और रिश्वत कल्चर की बीकनी हो सकेगी। ये है SSP शेखोपुरा सरफराज खान विर्क, जिन्होंने सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करने के बाद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पुलिस फोर्स में शमूलियत इख्तियार की थी। कई इलाकों में फराइज अंजाम देने के बाद आजकल शेखोपुरा में जिले पुलिस के सरबराह हैं। सरफराज खान विर्क के बारे में ये भी मालूम हुआ है कि मियांवाली में तैनाती के दौरान उन्होंने जराइम पेशा अनासिर के खात्मे के लिए गरां कदर खिदमात अंजाम दी थी और जब उनका तबादला हुआ तो मियांवाली के अवाम को यूं लगा जैसे उनका सरपरस्त चला गया हो। मियांवाली के अवाम ने डीपीओ शेखोपुरा का तबादला रुकवाने के लिए मुजाहिरा भी किया था। डीपीओ शेखोपुरा अपने हर इक़दाम से मुतमईन नजर आए। मैं तो एंजॉय करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पुलिस में जो आदमी रहता है आहिस्ता से उसके डर खौफ खत्म हो जाते हैं। जब मैं स्टूडेंट था, जब मैंने पहले दिन पुलिस को ज्वाइन किया और पहला मर्डर देखा तो शायद मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इतना मुश्किल था। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं कुछ फासले पर था तो हमारे पर टेररिस्ट अटैक हुआ, काफ़ी लाशें उठा कर हम रख रहे थे जिसके आज़ाद बिखरे हुए।
तो इतना वो दिन भी देखना पड़ता है। तो पुलिस में आहिस्ता आहिस्ता आपको वो जो स्ट्रेंथ मिलती रहती है और आपको वो डर खौफ खत्म हो जाता है। शब्बीर के कहने पर डीपीओ शेखोपुरा ने उनकी जिंदगी में पेश आने वाला वो वाकया भी बताया जिसमें खतरनाक मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन में खुद उन्होंने हिस्सा लिया था। मैंने एलीट की टीम साथ ली, डीएसपी को साथ लिया। मौके पर पहुंच के हमें पता चला कि पहले वो किसी घर में घुसे हैं, लेकिन घर वालों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, हमें बता दिया। उनको भी इतला मिली तो वो वहाँ से भाग पड़े और हमने उनको एक चावल की फसल में उनको घेरे में लिया और उसमें उन्होंने हम पर डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दी। अल्लाह का शुक्र है उसके बाद हमारे फायरिंग बहुत ज़्यादा हुई, तकरीबन ये 1.5-2 घंटे पूरे गांव 4-5 गांव इसको विटनेस कर रहे थे। छतों पर लोग देख रहे थे और देख रहे थे किस तरह पुलिस काम कर रही है। हमने उनको घेरे में लिया और उसी चावल की फील्ड में उनके साथ हमारे लाइव एनकाउंटर में वो दोनों मारे गए। डीपीओ सरफराज खान विर्क शब्बीर से बातें कर रहे थे और शब्बीर दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि खुदा करे कि मुल्क गिर पैमाने पर पुलिस की फलाह व बहबूद के साथ पुलिस अवाम ताल्लुक को बेहतर बनाने और महकमे में मौजूद मुबैना करप्शन के खात्मे के लिए भी कोशिशें की जाएं। शब्बीर का कहना है कि अवामी खिदमत के इदारे में काम करने वाले दयानतदार अफसरों को अपने और अपने अहले खाना तक के लिए वक्त नहीं मिलता। यही हाल डीपीओ शेखोपुरा का भी था। डीपीओ शेखोपुरा के साथ पूरा दिन गुजारने के बाद शब्बीर ने महकमे पुलिस के मजीद फर्शनास, बहादुर और ईमानदार पुलिस अफसरों और अहलकारों की तलाश का प्लान बनाया और फिर इस मंसूबे के तहत शब्बीर ने चारों सूबों की खाक छान मारी। मगर ये सब देख सकेंगे आप आने वाले दिनों में, तब तक के लिए इजाजत। मगर शब्बीर का कहना है कि देखना न भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।